Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 8 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा. चलिए स्टार्ट करें. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कुछ नेशनल अफेयर्स में. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया टू ओडिशा एंड असम. यहाँ पर इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए. अगर बात करें ओडिशा की, तो इन्होंने यहाँ पे 68,000 करोड़ रुपीस के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया संबलपुर ओडिशा में. ये जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे आपके एनर्जी से रिलेटेड रहेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड रहेंगे, नेचुरल गैस को प्रमोट करने के लिए ये प्रोजेक्ट्स रहेंगे, राइट. रेलवे सेक्टर के लिए, रोड्स को डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट्स रहेंगे. असम की बात करें तो असम में पीएम मोदी ने 11,600 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया. ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को. ओडिशा की अगर बात कर रहे हैं तो कैपिटल क्या रहेगी? भुवनेश्वर. ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? नवीन पटनायक. गवर्नर कौन रहेंगे? रघुबार दास. एंड कैपिटल क्या रहेगी? यहाँ पे अभी हमने देखा भुवनेश्वर. सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क आपके ओडिशा में हैं. एंड फर्स्ट ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम भी कहाँ पे? ओडिशा में ही लॉन्च किया गया था. नेक्स्ट आ जाते हैं डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स. यह भी इनॉग्रेट की गई राजीव चंद्रशेखर के द्वारा. कहाँ पर? राजीव चंद्रशेखर हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के. इन्हीं के द्वारा ये डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स को भी इनॉग्रेट किया गया था. पूछा जा रहा है कहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया था, तो IIIT दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया था. IIIT क्या है? इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली में. ठीक है, ये आपका डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब समिट 2024 के दौरान इसको लॉन्च किया गया ऑन 3 फेब. एक चीज़ याद रखेंगे, जो डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स है यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की बात की जाएगी, करेक्ट. एंड इन्होंने ही डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स ने यहाँ पे कोलैबोरेट किया, कोऑर्डिनेट किया CDAC के साथ. CDAC क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग. ठीक है, एक चीज़ करेक्ट करेंगे यहाँ पे. मैंने अभी हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं कौन है MEITY के? वो हैं अश्विनी वैष्णव, राइट. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर, करेक्ट. इनके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स, करेक्ट. एंड MEITY के यहाँ पे मिनिस्टर की बात की जाए तो अश्विनी वैष्णव, करेक्ट कर लेंगे, राइट. और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन रहेंगे? वो है राजीव चंद्रशेखर, राइट. मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर है. यूनियन मिनिस्टर कौन रहेंगे? अश्विनी वैष्णव. सो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना. नेक्स्ट आ जाते हैं. आपने देख लिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने इनॉग्रेट किया डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स है IIIT दिल्ली.
नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया कितना अमाउंट टू द यूएन बजट। देखो यूनाइटेड नेशंस, इनको भी प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे फंडिंग चाहिए होती है, करेक्ट, कि ये अपनी सारी प्रोसेस कर सकें, रेगुलेशंस ला सकें, पीस बिल्डिंग फंड्स होने चाहिए इनके पास कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए, राइट। किसी कंट्रीज़ में अगर कहीं पे दिक्कत चल रही है तो वहाँ पे हेल्प करने के लिए इनके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये अलग अलग इनिशिएटिव्स लाता रहता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड यूएनईपी हो गया, यूएनडीपी हो गया, तो इनको भी तो फंड करने के लिए पैसा चाहिए। तो अभी इंडिया ने $32.89 बिलियन यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया टू यूएन फंड 2024 में। यही बात अगर मैं 2023 की बात करूं तो इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया था टू यूनाइटेड नेशंस, तो इंडिया ने 2023 में अगर बात की जाए तो जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया था वो था अराउंड $30.54 मिलियन, और ये $30 मिलियन की बात करें तो ये कितना आ जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 273 करोड़ रुपीस इंडिया को। और एक चीज़ और, जब यूएन अपना बजट बना के देता है फंडिंग का कि उनको इतना फंडिंग चाहिए, एंड कंट्रीज विद इन 30 डेज उस फंड को अलोकेट कर देती हैं, वो फंड प्रोवाइड कर देती हैं, तो उनको ऑनर रोल ऑफ द यूएन में ऐड किया जाता है। कहाँ पे ऐड किया जाता है, ऑनर रोल ऑफ द यूएन। ये एक लिस्ट होती है ऑनर रोल जिसमें कंट्रीज को ऐड किया जाता है। टोटल 43 कंट्रीज 2024 में इसका पार्ट रहेंगी कि जिन्होंने, जब यूएन ने यहाँ से फंड मांगा विद इन 30 डेज उन कंट्रीज ने वो फंड अलोकेट कर दिया, करेक्ट। तो इंडिया का अमाउंट याद रखेंगे $32.89 मिलियन 2024 के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनर किया ताकि इंडियन स्टूडेंट्स वर्ल्ड की किसी भी कोने में से बैठ के अपने कॉलेज की फीस को पे कर पाएंगे इन इंडियन रुपीस, इन INR वो पे कर पाएंगे यूजिंग द SBI बैंक। SBI बैंक से डायरेक्टली INR में, इंडियन रुपीस में इंडियन स्टूडेंट्स जो बाहर के कॉलेजेस में, अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, वो अपनी फीस को डायरेक्टली इंडियन रुपीस में पे कर पाएंगे यूजिंग SBI बैंक। इसके लिए SBI बैंक ने किस पेमेंट के साथ या किस पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे टाई अप किया, तो वो रहेगा फ्लाईवायर के साथ। फ्लाईवायर की बात करें तो ये बॉस्टन USA बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इनके साथ SBI ने पार्टनर किया ताकि इंडियन स्टूडेंट्स इंडियन रुपीस में यहाँ पे कर पाएं डायरेक्टली फ्रॉम देयर SBI अकाउंट, क्योंकि ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस होती है काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाती है, एंड इससे डायरेक्टली पेमेंट होगी, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी मेंटेन रहेगी इजीली, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ जो गाइडलाइंस आई ये अलाउ करती हैं इंडियन रेजिडेंट्स को टू रेमिट इजीली अप टू $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर HDFC बैंक ने अभी 4 बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया। ये क्रेडिट कार्ड आपके MSMEs, स्टार्टअप्स, प्रोफेशनल्स या जो भी अपना फ्रीलांसर्स हैं या जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कम्युनिटी है, उनको हेल्प करता है। ये जो 4 क्रेडिट कार्ड हैं ये रहेंगे आपका बिज फर्स्ट, बिज ग्रो, बिज पावर एंड बिज ब्लैक। तो ये 4 क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए गए हैं अभी HDFC बैंक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं LIC ने अभी एक इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया जिसका नाम रहेगा इंडेक्स प्लस प्लान। तो पूछा जा सकता है, एक LIC इंडेक्स प्लस ये एक यूनिट लिंक्ड रेगुलर प्रीमियम इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो LIC के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। दिस LIC इंडेक्स प्लान विल बी अवेलेबल फॉर परचेज फ्रॉम 6 Feb 2024। 90 दिन इसकी मिनिमम एंट्री एज आ जाती है, 50 से 60 मैक्सिमम, करेक्ट। एज ऑफ मैच्योरिटी है 18 साल मिनिमम एंड 75 या 85 साल आपकी, जब आपको बोथ ऑन एश्योर्ड सम। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वन द एल्बम ऑफ द ईयर फॉर 4th टाइम ड्यूरिंग द 66 एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स। इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे, अभी रिसेंटली ग्रैमी अवार्ड्स हुए थे, राइट, म्यूजिक से रिलेटेड होते हैं ये, 2024 के हुए थे, 66th एडिशन था ग्रैमी अवार्ड्स का। लोकेशन LA में हुए थे, USA में, एंड इसी में भी याद रखेंगे crypto.com अरीना में ये हुए थे, ठीक है।
फिर पूछा जा रहा है कि किन्होंने यहाँ पे फॉर द 4th टाइम ग्रैमी अवार्ड्स को जीत लिया, और ग्रैमी में भी एल्बम ऑफ द ईयर कैटेगरी में इन्होंने जीता है इसको। तो ये रहेंगी टेलर स्विफ्ट। ये पहली आर्टिस्ट बन गई हैं इन द हिस्ट्री जिन्होंने 4 बार यहाँ पर एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब जीता। कौन सी एल्बम का क्या नाम रहेगा इनका? मिडनाइट्स। मिडनाइट्स एल्बम के लिए इनको चौथी बार यहाँ पे एल्बम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, टेलर स्विफ्ट को। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। एच वेंकटाचलम अय्यर, इनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। मार्क करके चलेंगे। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO बने हैं एच वेंकटाचलम अय्यर। वहीं पे मैं बात करूं MD एंड CEO कौन बने हैं टाटा डिजिटल के, वो हैं नवीन तहिलियानी। नवीन तहिलियानी MD एंड CEO बने टाटा डिजिटल के। एच वेंकटाचलम अय्यर ये बने MD एंड CEO टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है नायीब बुकेले, इनको रिलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ एल सल्वाडोर फॉर द 2nd टर्म। आई रिपीट, एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट किए गए हैं? रिलेक्ट किए गए फॉर द 2nd टर्म। वो कौन रहेंगे? नायीब बुकेले ऑर्टेज। 42 साल के हैं, करेक्ट, और इनको अभी 2nd कॉन्जिक्यूटिव टर्म रहेगा इनका एज द प्रेसिडेंट ऑफ एल सल्वाडोर। नेक्स्ट रवि कुमार झा, इनको अपॉइंट किया गया एज MD एंड CEO ऑफ LIC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आई रिपीट, रवि कुमार झा ये अभी नए MD एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी AMC के, एसेट म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। ठीक है, तो LIC AMC के नए MD एंड CEO रवि कुमार झा। नेक्स्ट HDFC बैंक, इनको भी अप्रूवल मिल गया RBI से कि ये 6 बैंक्स में अपना 9.5% स्टेक एक्वायर कर सकते हैं। आई रिपीट, 9.5% स्टेक एक्वायर करने की यहाँ पे अभी अप्रूवल मिला है HDFC बैंक को। करेक्ट, 6 बैंक कौन से रहेंगे? एक्सिस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक, येस बैंक एंड इंडसइंड बैंक। इन 6 बैंक्स में यहाँ पे HDFC को अप्रूवल मिला कि 9.5% स्टेक अपना बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पर। ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा अभी एक इवेंट हुआ था, और ये फर्स्ट एवर इवेंट था, फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस थी वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस की। राइट, वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस फर्स्ट एवर इवेंट था। कहाँ पर हुआ? ओडिशा भुवनेश्वर में हुआ 1 से लेकर 3 फरवरी के बीच में। और इसी वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस के दौरान ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के द्वारा एक कॉफ़ी टेबल बुक रिलीज की गई जिसका नाम है श्री जगन्नाथ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इस बुक को पब्लिश किया जाएगा द हिंदू ग्रुप एंड इसको एडिट किया जाएगा रघुवीर श्रीनिवासन, एडिटर ऑफ द हिंदू बिजनेस लाइन के द्वारा। ये जो बुक है ये नरेट करती है अबाउट वेरियस ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स रिलेटेड विद लॉर्ड जगन्नाथ। ठीक है, तो इस बुक का नाम याद रखेंगे एंड कब रिलीज हुई ये भी याद रखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एवर एडिशन बोले या इनॉग्रल एडिशन बोले ऑफ वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस का। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन 24 जनवरी को हम ऑब्जर्व 6 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। राइट, आई रिपीट, 6 फरवरी को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। और इस बार हमने 13th एडिशन ऑब्जर्व किया है इसका 2024 में। यहाँ पर इसकी थीम आ जाती है, मार्क करके चलेंगे, हर वॉइस हर फ्यूचर इन्वेस्टिंग इन सर्वाइवर लेड मूवमेंट्स टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ये आपकी थीम रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स फिर केरला के ये है स्टेट न्यूज़। केरला के फाइनेंस मिनिस्टर KN बालागोपाल जी, इनके द्वारा भी स्टेट बजट प्रेजेंट किया गया है केरला का। डायरेक्ट इस चीज़ को याद रखेंगे कि इनके द्वारा केरला का स्टेट बजट प्रेजेंट किया गया इनके फाइनेंस मिनिस्टर KN बालागोपाल जी के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर रिवीजन पर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने इनॉग्रेट किया डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स एट IIIT दिल्ली। इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है $32.89 मिलियन 2024 में फॉर द UN रेगुलर बजट। SBI ने टाई अप किया फ्लाईवायर के साथ टू फॉस्टर पेमेंट इन इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड, ताकि वो अपने बैंक अकाउंट से ही डायरेक्टली INR में पेमेंट कर सकें। SBI के अकाउंट से ये कर पाएंगे ऐसा एंड इंडियन रुपीज़ में कर पाएंगे।
देन HDFC बैंक ने लॉन्च किए 4 बिजनेस क्रेडिट कार्ड, बिजफिस, बिजग्रो, बिज पावर एंड बिज ब्लैक, सेल्फ एम्प्लॉयड कम्युनिटीज़ को हेल्प करने के लिए। LIC ने लॉन्च किया इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। देन 66 एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स की बात करें तो टेलर स्विफ्ट ने यहाँ पे एल्बम ऑफ द ईयर टाइटल को जीत लिया फॉर द 4th टाइम। H वेंकटाचलम अय्यर इनको अपॉइंट किया गया MD एंड CEO ऑफ टाटा AIA लाइफ। देन नवीन तहलियानी को अपॉइंट किया गया एज MD एंड CEO ऑफ टाटा डिजिटल। नायब बुकेले इनको रिलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ एल सेल्वाडोर फॉर द 2nd टर्म। रवि कुमार झा अपॉइंट किए गए एज MD एंड CEO ऑफ LIC AMC। दैन HDFC बैंक को अप्रूवल मिल गया फ्रॉम RBI टू एक्वायर अप टू 9.5% स्टेक इन 6 बैंक्स। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने रिलीज़ की एक कॉफ़ी टेबल बुक जिसका टाइटल है श्री जगन्नाथ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। दैन इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस ऑब्जर्व किया गया फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन 6 फरवरी को। एंड केरलाज फाइनेंस मिनिस्टर KN बालागोपाल ने प्रेजेंट किया स्टेट बजट फॉर फिस्कल ईयर 24-25। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे एंड कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट मैं डेली बेसिस पे ला सकूं। तो अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। नॉर्वेनियन ग्रैंड मास्टर एंड वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन, इन्होंने अपना 7वां वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप को जीता अभी रिसेंटली। एंड यहीं पे अगर वीमेंस कैटेगरी की बात करें तो रशियन ग्रैंड मास्टर वैलेंटीना गुनिना, इन्होंने अपना 2nd टाइम यहाँ पे वीमेन ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप टाइटल को जीता। तो 7 टाइम फॉर मैग्नस कार्लसन एंड 2nd टाइम फॉर वैलेंटीना गुनिना। और यहीं पे याद रखेंगे मैग्नस कार्लसन का ये 17वां वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप टाइटल रहेगा। मूविंग ऑन, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू स्टार्टअप ऑपडोर टू प्रोवाइड एंड टू एंड सॉल्यूशंस टू ई-कॉमर्स फर्म। ये ऑपडोर क्या है, बेसिकली एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा टू ई-कॉमर्स वेरियस फर्म्स। इसको लॉन्च किया गया बाय फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिन्नी बंसल जी के द्वारा। राइट ऑप्शन 5। फिर अयोध्या एयरपोर्ट का रीनेमिंग करके क्या कर दिया गया है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक, फिर इसी के साथ साथ अभी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया फॉर सिंगिंग इन द मोस्ट लैंग्वेजेस एट अ कंसर्ट इन दुबई। किनके द्वारा, सुचेता सतीश के द्वारा। राइट, फिर इसी के साथ साथ अर्जेंटीना ने ब्रिक्स की मेंबरशिप को लेने से मना कर दिया है। ब्रिक्स की चेयरमैनशिप इस बार 2024 में किसके पास रहेगी, रशिया के पास। नेक्स्ट, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने लॉन्च किया नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल टू स्ट्रीमलाइन इंपोर्ट क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस एंड टेस्टिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। फिर यहीं पे द साइट इज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय इन्वेस्ट इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड थ्रू डैश कंपनी फॉर CDSCO। तो किस कंपनी ने, TCS ने। एज पर द हाफ ईयरली इकोनॉमिक रिव्यू 2023-24 नवंबर 2023 रिलीज्ड बाय DEA अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहाँ पे बताया गया कि इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है टू अचीव अ ग्रोथ रेट ऑफ हाउ मच परसेंट इन फिस्कल ईयर 2024। तो इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है 6.5% की। ये डाटा आप देखेंगे 6 से 7% के बीच में वेरी करता रहेगा। राइट, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डाटा पब्लिश करेगी, ऊपर भी कर सकती है, नीचे भी कर देती है। फिर यहीं पे आप देखेंगे जो फर्स्ट हाफ था 2023 का, हमने वहाँ पर 7.6% से यहाँ पे ऑन एन एवरेज हमने ग्रो किया और 7.7% से हमने यहाँ पे ऑन एन एवरेज ग्रो किया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 24, जो कि 23-24 का डाटा है। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉर्वेनियन ग्रैंड मास्टर एंड वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर चेस मास्टर और वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन। इन्होंने अभी वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप को जीत लिया है फॉर विच टाइम, तो इन्होंने 5वीं बार यहाँ पे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप को जीत लिया इन मेंस कैटेगरी। वहीं पे रशिया की चेस प्लेयर एनास्तीसिया बोदनारुक, इन्होंने 5 वर्ल्ड वीमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप को जीत लिया है, करेक्ट। और इन्होंने इंडिया की कोनेरू हम्पी, जो कि इंडिया की चेस ग्रैंड मास्टर हैं, उनको हराया टू विन दिस टाइटल ऑफ वीमेंस कैटेगरी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है ऑप्शन 1, करेक्ट। नेक्स्ट है हु हैज अज्यूम्ड द चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक ऑन 1 जनवरी 2024। तो अशोक वासवानी, राइट, इनको अपॉइंट किया गया MD एंड CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक ऑन 1 जनवरी। ये किनको रिप्लेस करेंगे, दीपक गुप्ता को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू MD एंड CEO, राइट। फिर इसी के साथ साथ इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल
कहाँ पे खुल रहा है? ये वृंदावन में खुल रहा है इन यूपी। ठीक, फिर इसी के साथ साथ 12th एडिशन ऑफ दिव्या काला मेला कहाँ पर होगा? सूरत में होगा। करेक्ट। फिर IREDA ने 2024 को डिक्लेयर किया एज द ईयर ऑफ HR डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट 2023, इन दिसंबर 2023 Canara Bank gave in principle approval to initiate the process of listing its mutual fund subsidiary Canara Robeco Asset Management Company through an IPO of shares. Here Canara Robeco AMC will be the dash listed AMC in India. तो ये 5वीं listed asset management company रहेगी in India. तो right option 2. Next, in January, Ministry of Heavy Industries extended the production linked incentive PLI scheme for automobiles and auto components by how many years? तो 1 साल के लिए यहाँ पे स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है। एंड इसी के अंदर याद रखेंगे, अगर कंपनी जो भी अपने डिटरमाइंड सेल्स का टारगेट है, थ्रेशोल्ड है, उसको अचीव नहीं कर पाती है एक साल में, तो उनको यहाँ पे जो इंसेंटिव है उस साल का नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, DRDO, इन्होंने अपना कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया ऑन 1 जनवरी? तो 1 जनवरी को हम रेजिंग डे या बोले तो 66th रेजिंग डे या फिर 66th फाउंडेशन डे ऑफ DRDO हमने ऑब्जर्व करा। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए ग्लोबल ड्रोन हब किस स्टेट को बनाया जा रहा है इंडिया में? तो महाराष्ट्र को ग्लोबल ड्रोन हब की तरह देखा जा रहा है। नेक्स्ट, किस स्टेट ने रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया किस स्टेट को रिकॉग्नाइज किया गया एज द पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया? तो गुजरात इंडिया की पेट्रो कैपिटल बनी है, याद रखेंगे। देन आर्सेलो मित्तल, इन्होंने अभी किस IIT के साथ टाई अप किया टू क्रिएट अ हाइपरलूप फैसिलिटी? हाइपरलूप फैसिलिटी डेवलप की गई। आर्सेलो मित्तल ने इन्होंने IIT मद्रास के साथ यहाँ पे टाई अप किया ताकि एक हाइपरलूप फैसिलिटी को डेवलप किया जा सके। देन के स्मार्ट टेक सॉल्यूशन, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस स्टेट के द्वारा? तो केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है के स्मार्ट टेक सॉल्यूशन। नेक्स्ट, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने या किस बैंक ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया एक स्पेशल 175 डेज की फिक्स डिपॉजिट विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5%? तो 7.5% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है FD पर। 175 डेज की FD रहेगी। पूछा जा रहा है कि किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया ये सुपर स्पेशल 175 डेज फिक्स डिपॉजिट? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, who has recently been appointed as the chairman of the 16th Finance Commission constituted by the Government of India? तो याद रखेंगे अभी रिसेंटली अरविंद पनागरिया, राइट, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट अभी की गई है। नेक्स्ट है इन जनवरी फेलिक्स एंटोनी, इनको रिलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ डैश कंट्री फॉर द सेकेंड टर्म। तो फेलिक्स एंटोनी, इनको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का यहाँ पे सेकेंड टर्म के लिए अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, डैश बिकेम द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो फर्स्ट वीमेन एंड 8th प्रेसिडेंट, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट एंड 8th प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक कौन बनी है? वो रहेंगी नादिया कैल्विनो, ये स्पेन से बिलोंग करती हैं, राइट। एंड ये पहली वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक एंड 8th प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक बनी। RBI ने रिवाइज किया बल्क डिपॉजिट लिमिट फॉर द शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन टायर 3 एंड टायर 4 टू 1 करोड़ एंड अबव फ्रॉम 15 लाख एंड अबव। 15 लाख से बढ़ाकर जो लिमिट है उसको 1 करोड़ कर दी गई है, राइट। और ये 6.66 टाइम इंक्रीज हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट, राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 4th। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द प्यूबिटी स्पोर्ट्स मैन एथलीट ऑफ द ईयर 2023? तो वो रहेंगे विराट कोहली। मैन एथलीट ऑफ द ईयर प्यूबिटी के कौन है? विराट कोहली। वहीं पे अगर मैं बात करूं वीमेन कैटेगरी में, यहाँ पे या फीमेल प्यूबिटी स्पोर्ट्स फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर 2023 कौन रहेंगी? वो रहेंगी स्पेनिश फुटबॉलर आइताना बॉनमाती, राइट। ये एक स्पेनिश फुटबॉलर है।
यहीं पे अगर मैं बात करूं एथलीट ऑफ द ईयर 2023 फॉर्ब्स के कौन रहेंगे, लायनल मेसी। सीईओ ऑफ द ईयर 2023 कौन रहेंगे फॉर्ब्स के हिसाब से, सैम ऑल्टमैन। और सैम ऑल्टमैन की तो अभी रिसेंटली एंगेजमेंट भी हुई है। नेक्स्ट, विच स्टेट्स पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिसेंटली रिसीव्ड द प्रपोज्ड एक्विजिशन ऑफ 100% शेयर होल्डिंग ऑफ GVK पावर लिमिटेड फ्रॉम द CCI। तो अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट यहाँ पे 100% स्टेक एक्वायर करेगी इन GVK पावर लिमिटेड। और ये कितने में एक्वायर करेगी, 1080 करोड़ रुपए में, राइट? नहीं, इसको हाँ बिल्कुल सही, 1080। नेक्स्ट, जनवरी 2024 की बात करें तो एक 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिट किया था इशिकावा प्रीफेक्चर को, किस कंट्री में, तो जापान में। अगर आपको याद हो पिछले ही हफ्ते की बात है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक अर्थक्वेक आया था और वहाँ के उसके बाद फ्लड की वार्निंग भी जारी कर दी थी, राइट? तो जापान में यह भी अर्थक्वेक आया था 7.5 मैग्नीट्यूड का। नेक्स्ट, विद सेंटर ऑफ इसरो, इन्होंने एक MOU साइन किया जैन में विद NHAI ताकि डेवलप किया जा सके एंड रिपोर्ट अ ग्रीन कवर इंडेक्स फॉर नेशनल हाईवेज इन इंडिया। तो किसके द्वारा, तो वो है इसरो का आर्म NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का आर्म, नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये आर्म रहेगा इसरो का। इन्होंने एक MOU साइन किया किसके साथ, NHAI के साथ, ताकि डेवलप किया जा सके एक ग्रीन कवर इंडेक्स को, राइट? मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिर, विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम्स असेंट गिवन टू द बिल्स। अगर इनकी यहाँ बात करें तो तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेंगे। नेक्स्ट, विच स्टेट्स प्रोडक्ट्स आदि केकरी, हैंडमेड कारपेट एंड वेंचो वुडन क्राफ्ट, ये 3 प्रोडक्ट किस स्टेट के हैं जिनको अभी रिसेंटली GI टैग मिला? तो ये 3 प्रोडक्ट रहेंगे अरुणाचल प्रदेश के, जिनको अभी रिसेंटली GI टैग मिला है। नेक्स्ट आ जाता है, किस कंट्री ने अलॉन्ग विद इंडिया इन्होंने कमेंट्स किया फर्स्ट एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। पहला एडिशन था, इनॉग्रल एडिशन कह सकते हैं, कहाँ पर हुआ, राजस्थान में। लोकेशन इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। ये डेजर्ट साइक्लोन है किसके बीच में, इंडिया एंड UAE के बीच में। इन्हीं के बीच में याद रखेंगे एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज भी कंडक्ट की जाती है जिसका नाम रहता है क्या, राइट? हम बात कर रहे हैं एयर एक्सरसाइज की, उसका नाम है डेजर्ट ईगल। यह है डेजर्ट साइक्लोन, तो राइट ऑप्शन UAE। नेक्स्ट, इन जनवरी डैश बिकेम द फर्स्ट ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, तो वो रहेगी जम्मू एंड कश्मीर। इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंदर 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग मिली तो बेसिक ट्रेनिंग, राइट? 15 दिन की ट्रेनिंग मिली तो एडवांस ट्रेनिंग। एंड यहाँ पर हर ट्रेनिंग को हर दिन 500 रुपये का स्टाइफंड दिया जाएगा। एंड ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 15,000 रुपये का यहाँ पे टूल किट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और यहाँ पर हम 30 से भी ज़्यादा ट्रेनीज को, यहाँ पे लोगों को ट्रेन करेंगे अंडर दिस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंडर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट ज्वाइन ब्रिक्स न्यू मेंबर, तो अभी हमने देखा था जनवरी 2023-24 में अर्जेंटीना ने ब्रिक्स का मेंबर बनने से मना कर दिया। नेक्स्ट, in January, RBI issued the revised guidelines for classifying accounts and deposits as inoperative accounts and unclaimed deposits by bank which come into effect from dash to from 1st of April 2024। मतलब जो भी unclaimed deposits हैं, जिस बैंक अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, तो यहाँ पे बैंक्स को बोला है कि उन अकाउंट्स के ऑपरेटर्स को, ओनर्स को कांटेक्ट किया जाए एंड उनको बताया जाए कि आपके यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है एंड कोई भी अगर फंड है तो वो उनको निकाल सकते हैं। एंड काफ़ी टाइम से अगर वहाँ पे वो फंड ऐसे ही बैठा हुआ है, कोई उसका यूज़ नहीं कर रहा, उस बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो उसके ऑनर्स को यहाँ पे आगाह किया जाएगा, उनको बताया जाएगा अबाउट दिस, राइट? तो राइट ऑप्शन 1st of April। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, लेक रुतुरुआ हैज़ बिन रिसेंटली न्यूज़, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? सेकेंड, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ग्रेप्स 3 प्रोजेक्ट, गामा रे एस्ट्रोनॉमी PEV एनर्जीज फेज 3 प्रोजेक्ट, जो भी न्यूज़ में था। तीसरा, विच स्टेट कैबिनेट, या किसने अभी UCC को अपनाया है, वो स्टेट का नाम बताओ। फोर्थ, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट UPI पेमेंट सिस्टम। एंड फिफ्थ, वेयर विल एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 विल बी कंडक्टेड,
तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए आप सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ, कजन्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म अफेयर्स क्लाउड। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.